गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का डिजर्नर का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जब आपका बिल डिजर्नर हो जाता है, डिजर्नर का मतलब होता है कि जब ड्यू डेट आता है और जब आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन को, उस केस को क्या बोलते हैं, डिजर्नर बोलते हैं। मतलब आपका पेमेंट नहीं मिला, आपको पेमेंट नहीं मिला। तो यहाँ पे दो केस होता है। एक केस ये होता है कि आपने गए, ठीक है, आपको पेमेंट नहीं किया, आपने कोई कुछ भी नहीं किया, ना कोर्ट किया ना कुछ किया। ओके। दूसरे केस में क्या होता है कि आप कोर्ट जाते हैं, उसको प्रूव करते हुए ठीक है उसने रियल में पेमेंट नहीं किया। जब कोर्ट जाते हैं तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जिस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। तो यहाँ पे डिजर्नर के केस में दो केस बनाऊंगा, जब आप नोटिंग चार्जेस नहीं पेमेंट करते हैं और जब नोटिंग चार्जेस पेमेंट करते हैं। अभी सिर्फ मैं ड्रॉयर की बुक में बता रहा हूँ। ओके, देखिए ट्रांजेक्शन्स। केस वन, यहाँ पे देखिए केस वन, इसमें चार केसेस हैं। केस वन पहले देख लीजिए। केस वन, व्हेन विल रिटर्न टिल ड्यू डेट, व्हेन विल रिटर्न व्हेन विल रिटर्न टिल ड्यू डेट and dishonor तो यहां पे लिखूंगा, ठीक है, डोइज अकाउंट दिया है, डोइज अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट being will dishonor on due date। यहाँ पे क्या हुआ, डोइज अकाउंट DR including noting charges, including noting charges तो उसके बाद नोटिंग चार्जेस अकाउंट, including noting charges to bill receivable account to cash account from bill amount। From bill amount, including noting charges from bill amount, from noting charges in bill dishonor and noting charges paid। ओके, केस टू हो गया। केस टू, when will discounted
एंड रीजनल। क्या? हाँ बोला तो है। हाँ, डोइज अकाउंट यार, डोइज अकाउंट दियर टू बैंक अकाउंट फ्रॉम बिल अमाउंट फ्रॉम bill amount being bill dejourned on due date being bill dejourned being bill dishonor being bill dishonor being bill dishonor on due date being bill dishonor on due date. Here drawing account dear to bank account including noting charges. ऐसे लिख देते हैं, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस bill amount including noting charges. Being bill dejourned on due date. Being bill dejourned on due date. Being bill dejourned on due date. केस स्टार्ट देखिए, केस स्टार्ट when we endorse and dejourned. Drawing account DR to endorse account. Endorses account from bill amount being bill dejourned. Being bill Institutional, Valentine mandatory for UK passengers,
including noting charges. Case for when bills sent for collection regional. When bill sent for collection when bill sent for collection and this journal. ड्रॉइंग अकाउंट इसमें बेटा ये ड्राइंग जो होगा नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करके दिखाएंगे। ड्रॉइंग अकाउंट दिया ड्रॉइंग फंड दिया टू एंडोर्स अकाउंट here from bill amount ड्रॉइंग अकाउंट दिया टू bill sent for collection दिया bill sent for collection to बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे बिल अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस बिल अमाउंट including noting charges from bill amount और यहाँ पे from noting charges from noting charges and
noting charges incurred. And noting charges incurred. Incurred. B journal. Now in the books of drawing, in the books of drawing, when noting charges not bear, when noting charges not bear, when noting charges bear, when noting charges not bear, when noting charges bear, when noting charges bear, चार्जेस बेयर। अब देखिए ड्राइंग बुक में देखिए, यहाँ पे देखिएगा पर्टिकुलर्स में, यहाँ पे कोई भी केस होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल केसेस, इररिस्पेक्टिव of all cases, entries will remain same. Entries will remain same. Entries will remain same. यहाँ होगा bills payable account, dear from bill amount, bill amount to drawers account, drawers account being bill not paid, being bill dishonored, being bill dishonored on being bill dishonored on due date. Guess कौन कौन दिया? Guess drawers account दिया
noting charges there from bill amount from amount from noting charges amount charges to dwell upon from total being bill disjoiner and noting charges here ये देखिए फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा। इंडोर्सी जापान। ओके देखिए बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए बिल डिजर्न की एंट्री बता रहा हूं। बिल डिजर्न का मतलब हुआ कि ड्यू डेट पे आपको पेमेंट नहीं मिला, तो उस केस में डोयर के बुक में तो 4 केसेस होते हैं। जैसा केस होगा उसके हिसाब से एंट्री पास कर दूंगा, और ड्रॉइंग की बुक में एक ही एंट्री होगी, चाहे केस कोई भी हो। तो पहला केस देखिए कि जब बिल आपका क्या है डोयर अपने पास रखता है और फिर ड्यू डेट पर लगाता है, पेमेंट नहीं मिलता, मतलब डिजर्न हो जाता है। तो डोइज को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डोइज ऑलवेज डेबिटेड रिस्पेक्टिव ऑल केसेस इन द बुक्स ऑफ डोयर। डोयर के बुक में ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, चाहे कोई भी केस हो। तो डोइज अकाउंट दिया तो बिल अकाउंट फ्रॉम बिल अमाउंट, यहाँ पे बिल अमाउंट, इसमें नोटिंग चार्ज वाला केस नहीं है। और यदि नोटिंग चार्जेस वाली केस होगी और क्लियर है तो यहाँ पे एंट्री होगी। देखिए डोइज अकाउंट दिया इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, मतलब क्या हुआ, इसमें बिल अमाउंट भी आएगा प्लस नोटिंग चार्जेस भी आएगा। टू बिल अकाउंट फ्रॉम बिल अमाउंट टू कैश अकाउंट फ्रॉम नोटिंग चार्ज, मतलब कि जितना आपने पेमेंट किया कोर्ट वालों को, बीइंग बिल डिजॉर्डर एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ओके अब दूसरा क्या देखिए, जब आपने बिल को क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया, बिल को डिस्काउंट करवा लिया और फिर क्या हो गया, डिजॉर्डर हो गया, मतलब बैंक को आपको क्या, बैंक को ड्यू डेट पे डोई ने पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, डोइज अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, किसके बुक में हो रही है, डोइज के बुक में हो रही है, बीइंग बिल डिजॉर्डर ऑन ड्यू डेट। यहाँ पे होगा डोइज अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, एंट्री तो दोनों में सेम होगा, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें और इसमें दोनों में नोटिंग चार्जेस मिला के होगा, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। क्योंकि जब नोटिंग चार्जेस पेमेंट किया है तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, बैंक किससे लेगा, डोयर से लेगा, और डोई किससे लेगा, डोयर किससे लेगा, डोई से लेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नोटिंग चार्ज अमाउंट बैंक क्या है, डोयर से लेगा, और जो डोयर है वो डोई से लेगा। इसलिए डोयर के लिए ये हमारे एक्सपेंस नहीं है, फॉर अ टाइम के लिए पेमेंट कर रहा है, पर दिस इज नॉट एक्सपेंसेस। ओके थर्ड केस देखिए, बिल एंडोर्स एंड डिजॉर्डर। तो डोइज अकाउंट दिया तो इंडोर्सेज अकाउंट, मतलब जिसको आपने दिया है ना बिल को, उसको पेड कर देंगे फ्रॉम बिल अमाउंट बिग बिल डिजॉर्डर ऑन ड्यू डेट। इसमें क्या हुआ कि नोटिंग चार्जेस पेमेंट करी किसने, एंडोर्सी ने, ठीक है। अब फिर बिल क्या हो गया, डिजॉर्डर हो गया, तो एंट्री तो दोनों में सेम आएगा, डोइज अकाउंट टू एंडोर्सेज अकाउंट, पर इसमें फर्क क्या है, बिल अमाउंट भी आएगा और नोटिंग चार्जेस भी आएगा। यहाँ पे ऐसे कर लिया थोड़ा सा, यहाँ पे सही से हो जाएगा, बिल अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, बिल अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, डॉट का मतलब सेम अमाउंट, बीइंग बिल डिजॉर्डर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। यहाँ पे देखिए फोर्थ केस है, फोर्थ एंड लास्ट,
बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड डिलीवरी। जो आपने बिल को क्या किया, बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया, ठीक है आप मेरे बिहार में ड्यू डेट पे कलेक्शन करना और मेरे अकाउंट में जमा कर देना। तो उससे अपनी कैंडी जो देखिए डू एज अकाउंट दिया टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन फ्रॉम बिल अमाउंट। ओके, यहाँ पे ड्रॉइज अकाउंट में बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यहाँ पे जो ड्रॉइज है इसमें बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन फ्रॉम बिल अमाउंट, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट फ्रॉम नोटिंग चार्जेस। यहाँ पे बैंक बैलेंस से दिखाऊंगा और नोटिंग चार्जेस के अमाउंट से दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपने बैंक से कुछ भी नहीं लिया, यहाँ पे जस्ट आपने सिर्फ क्या किया, कलेक्शन के लिए उसको रखने के लिए दिया कि भैया रखो और जब ड्यू डेट आएगा तो कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में जमा कर लेना। पैसे तो कलेक्शन मिले नहीं बल्कि इसके पॉकेट से कुछ पैसे और लगे। ये बैंक वाला सिर्फ और सिर्फ जितना उसने नोटिंग चार्जेस पेमेंट किया उतना ही रिकवर करेगा, किससे, ड्रॉयर से। ओके, अब यहाँ पे आइए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग की बुक में डिजोर के केस में क्या एंट्रीज होगी, यहाँ पे हमने दो बना रहे हैं कि जब ड्रॉइंग नोटिंग चार्जेस बियर नहीं कर रहा है और जब नोटिंग चार्जेस बियर कर रहा है। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ड्रॉइंग के बुक में सिर्फ एक ही एंट्रीज होगी, चाहे केस कोई भी हो, कोई भी केस हो, ड्रॉइंग की बुक में एक ही एंट्रीज होगी। यहाँ पे लिख दिया है रिस्पेक्टिव ऑल केसेस एंट्रीज विल रिमेन सेम। तो बीपी अकाउंट दिया टू ड्रॉयर अकाउंट फ्रॉम बिल अमाउंट बीइंग बिल डिजोर्ड ऑन ड्यू डेट। यहाँ पे बाइफर्केट हो जाएगा, बिल अमाउंट अलग हो जाएगा और नोटिंग चार्जेस अलग हो जाएगा। तो बिल पेबल अकाउंट दिया फ्रॉम बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट दिया फ्रॉम नोटिंग चार्जेस। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस यहाँ पे अलग से दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि नोटिंग चार्जेस जो है वो ड्रॉइंग के लिए एक्सपेंस है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। टू ड्रॉयर्स अकाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस फ्रॉम टोटल अमाउंट बीइंग बिल डिजोर्ड एंड नोटिंग चार्जेस बियर। ओके बेटा, आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है, अच्छा से कर लीजिए। और मैं आप चाहता हूँ बेटा आप इसको नोट्स बनाते चलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना बता रहा हूँ अभी काफी सारी, जब पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा तो मैं काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा, सो दैट यू कैन मेक ए प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। और मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, चाहते कि और लोग बेनिफिट हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सो दैट मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर दे सकूं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब इसे कॉपी कर लीजिए।